कोई हर चीज जल सकती है, but answer is no. Every object or every substance is not the combustible substance. Like if you talk about stone, if you talk about plastic, or if we talk about glass, these things we cannot burn easily. Plastic, I'm talking about which plastic, which is inflammable, which is sorry, non-inflammable. So because we are having so many type of plastics, people have studied in chapter 3 also, thermoplastic and thermosetting plastic. So the plastic which cannot burn, I'm talking about that plastic only. So there are so many substances, those we cannot burn, like glass we cannot burn, stone we cannot burn. So the things or the substances, those we cannot burn, those do not burn and do not give us energy after burning, that substances are called as non-combustible substance. And the substances those burn and give us energy. यहाँ कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, कितनी भी कॉस्ट पे दे रही हूँ, बट दे आर बर्निंग एंड giving us energy. That substances are called as the combustible substances. तो इस चैप्टर में we are going to study about the properties of that substances, कि क्या होती हैं वो चीजें. See students, whenever anything burns, it means that thing is reacting with oxygen. In chapter 4 also I have explained you, जब हम कभी भी किसी भी चीज की बात करते हैं कि कोई चीज जल रही है, it is burning, it means it is reacting with oxygen. If coal is burning, if charcoal is burning, if coal is burning, it means coal is reacting with oxygen. If methane is burning, methane is a fuel, CH4 is the formula. आपको इतना ज्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं, बस मीथेन नाम याद रखो. So methane is a fuel. If methane is burning, it means methane is reacting with oxygen. Clear? So आपका बुक में तो नहीं दिया हुआ, but I am explaining you this, that there are two type of reactions. Whenever anything burns, it gives us two type of reactions. Suppose I am having one compound that is called as methane. The formula is CH4, and I am burning it. It means I am reacting the methane with oxygen. So CH4 plus oxygen. So when anything burns, anything, I am saying anything, any fuel when burns, it gives us carbon dioxide, water and energy. यही तीन प्रोडक्ट होंगे हमेशा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस. वी नो किसी भी चीज को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, और हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है. और वाटर होता है, ऑफ कोर्स वाटर ऐसा नहीं होता कि जैसे पानी निकल गया हो, आपका लिक्विड फॉर्म में नहीं होता. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, गैसियस स्टेट में होता है. एंड एनर्जी, हीट तो आपको मिलती ही है. कहीं पर अगर कुछ जल रहा होगा, कोई चीज जल रही होगी, आप उसके पास बैठे हैं, तो यू विल फील दैट हीट. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी दे रहे हैं. ठीक है. अब क्या है यहाँ पर, देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन. सपोज आई एम बर्निंग मीथेन इन ओपन एंड आई एम बर्निंग मीथेन इन अ क्लोज रूम ऑल्सो. ऑफ कोर्स जब क्लोज रूम में मैं किसी चीज को बर्न कर रही हूँ, वेयर देयर विंडोज आर ऑल्सो क्लोज एंड डोर इज ऑल्सो क्लोज, देयर विल बी लैक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कम होगा. और अगर मैं बाहर किसी चीज को बर्न कर रही हूँ इन द ग्राउंड, सो देयर विल बी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. तो दोनों केसेस में फर्क क्या होगा, व्हेन आई एम बर्निंग मीथेन इन द रूम एंड व्हेन आई एम बर्निंग methane in the ground. When I am burning in the ground, the products will be, after the burning, what products I will get, that is carbon dioxide, water vapors and energy, which I have told you right now. And when I am burning in the room, then also the product will be water, there will be energy also, but in place of carbon dioxide, which is CO2, there will be carbon monoxide, CO, because there was lack of oxygen. So what you understood from this, that when we are burning anything in the lack of oxygen, in place of carbon dioxide we get carbon monoxide. जब आप किसी चीज को बंद जगह पर बर्न कर रहे हो, जहां पर ऑक्सीजन कम है, बंद भी नहीं बोलूंगी मैं, wherever there is lack of oxygen, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह प्रोडक्ट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है हमें. तो दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट कंबशन. इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन. एंड व्हेन वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, when we are burning anything in a place where there is enormous amount of oxygen, where there is adequate amount of oxygen, that is called as complete combustion. तो वहां पर जो भी मीथेन है वो पूरा का पूरा जल जाएगा और प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलेगा. बट व्हेन देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन, जब ऑक्सीजन कम होता है, तो एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, एक तो ये है ही. एक और कॉन्सिक्वेंसी है इसकी कि जो प्रोडक्ट, जो हमारा रिएक्टेंट है, यानी जो मीथेन है, वो पूरा बर्न नहीं होगा, आधा ही बर्न हो पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन कम था.
तो हमारे पास रेजिड्यू बच जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो हीट प्रोड्यूस हुई है, जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा था तो जो हीट प्रोड्यूस हुई थी वो बहुत ज्यादा थी अमाउंट में, और जब ऑक्सीजन कम था तो जो हीट प्रोड्यूस हुई थी वो अमाउंट में कम भी थी। तो दो कॉन्सिक्वेंसीज, तीन रादर हमारे पास कॉन्सिक्वेंसीज हुई। कंप्लीट कंबशन में देयर विल बी no residue there. In product we will get carbon dioxide and we will get more energy. In incomplete combustion, methane will left as a residue, or any other compound can left as a residue, or carbon monoxide gas will produce, and the amount of energy will be less. So that is why we should make sure whenever we are burning anything anywhere, there should be adequate amount of oxygen over there. अब ये तो हमने देख लिया कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं चाहिए और रेजिड्यू भी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले। बट क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही थी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाएगी, थोड़ा सा एनर्जी कम मिलेगी, उससे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज अ वेरी पॉइजनस गैस। अगर किसी रूम में कोई आप कोई चीज बर्न कर रहे हो और वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई कम है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, एंड इट इज अ वेरी पॉइजनस गैस। ये हमारी बॉडी में चली जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर हीमोग्लोबिन में से सारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से देयर विल बी लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। सो फर्स्ट वी विल फील सफोकेटेड, एंड आफ्टर दैट द पर्सन कैन इवन डाई आल्सो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब उसकी बॉडी का सारा ऑक्सीजन चूस लेगी, बिकॉज वो तो खुद गरीब है ना, उसके पास ऑक्सीजन कम है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2, यानी ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है? CO, यानी ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज पुअरर देन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए वो क्या है? गरीब है वो। तो हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी का ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगी, तो हमें पहले सफोकेशन होगा, जैसे ऐसे ना दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रहा, कई बार हम ऐसा बोलते हैं। कई बार हीटर भी चल रहा होता है रूम में, तो या आग जल रही होती है, तो हमें लगता है नहीं यार विंडोज खोलो, बड़ा सफोकेशन सा हो रहा है, धुआं हो रहा है। तो दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आपको मैं एक बात बताती हूँ। वंस इन लद्दाख, दिस इज अ रियल इंसिडेंट, ऐसा हुआ भी था कि लद्दाख में ना बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है विंटर्स में। तो देयर वाज अ फैमिली जिन्होंने रात को दे लिट अ फायर, उन्होंने आग जलाई, और बिकॉज सर्दी थी तो उन्होंने अपने दरवाजे खिड़कियां सारे बंद कर दिए कि रात में हीट नहीं आए, वो ठंड नहीं आए, और सो गए। एंड बिकॉज पूरा सब कुछ बंद था, तो रात में जब आग जलती रही तो ऑक्सीजन का सप्लाई ऑब्वियसली कम हो गया। कम होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई, और वो सो रहे थे तो उन्हें फील ही नहीं हुआ, उनकी बॉडी में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता रहा। और पहले उनको सफोकेशन हुआ होगा डेफिनेटली, लेकिन इतना ज्यादा उनके अंदर शायद एनर्जी नहीं रही होगी कि उठ के किसी को बता पाते या विंडोज खोल पाते। और वो लोग जब मॉर्निंग में देखा गया तो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो मर गई थी। तो दिस वाज बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हमारे प्लांट्स भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। दैट इज व्हाई वी शुड मेक श्योर दैट देयर शुड बी always complete combustion, and for that there should be the adequate amount of oxygen whenever we are burning anything, or whenever the process of combustion is taking place somewhere. Clear? Now the next thing is, what are the conditions required for combustion? Can combustion takes place everywhere and in all the condition? The answer is no. Three conditions are required for combustion. Number one, which we have discussed right now only, that there should be oxygen. The presence of oxygen is compulsory. Second, the substance should be combustible. Obviously, जिस चीज को आप जला रहे हो वो combustible ही नहीं है। सपोज आप स्टोन को जला रहे हो, वो कह रहे हो यार ऑक्सीजन तो है, मैं बाहर माउंटेन्स के पास जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टोन को जल नहीं रहा है, ये पता नहीं क्यों, ऑक्सीजन तो इतनी है यहाँ पर। मैम ने कहा तो ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब ऑक्सीजन तो है भाई, लेकिन द सब्सटेंस विच यू आर ट्राइंग टू बर्न इज अ नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। वो कम्बस्टिबल ही नहीं है तो वो जलेगा कैसे? आप 10 दिन तक भी बैठे रहोगे तो भी वो नहीं जलेगा। So the first condition is substance should be combustible. Second condition is there should be adequate amount of oxygen, or oxygen is required for that. And third condition is the substance should reach to its ignition temperature. अब क्या है ये तीनों चीजें, इनको एक एक करके स्टडी भी करते हैं, और साइंस सिर्फ कहने पर बिलीव नहीं करता कि अच्छा ये तीन कंडीशन जरूरी है, ओके ओके मैं मान लेता हूँ। नहीं, साइंस ऑलवेज वांट प्रूफ, कि हमें प्रूफ चाहिए। भाई प्रूफ करो इस बात को कि ये तीनों चीजें जरूरी है। तो द फर्स्ट थिंग को प्रूफ करना तो बहुत आसान है,
take one combustible substance in your one hand and another non-combustible substance on another hand and try to burn both the things. So you will see that the combustible substance will burn and non-combustible substance will not burn. Like आपने एक हाथ में wood ले लो या paper ले लो और दूसरे हाथ में आप iron nails ले लो या stone का piece ले लो या कुछ भी ऐसा ले लो और दोनों को बर्न करने की कोशिश करो. वुड पेपर ये तो जल जाएगा और जो आयरन नेल्स हैं या स्टोन पीसेस हैं वो नहीं जलेंगे. जिससे पता चल जाएगा कि yes, for combustion the substance should be combustible. Second condition I have said that there should be presence of air or presence of oxygen. For that we can do an activity which is a very important question. What we will do, we will burn a candle and keep that candle in a glass. Then what we will do then, we will cover the, we will take one more glass and in that also we will keep one candle and we will cover that glass with anything, किसी भी चीज से, या wooden block ले लिया, suppose like here we have taken a wooden block and we will cover this with this wooden block. or you can take an airtight container also, कुछ भी आप ऐसा ले सकते हो जिसमें से air enter नहीं हो. So what we will see, after few seconds this candle will extinguish automatically. थोड़ी देर के बाद जो हमने कवर कर दिया था वो ऑटोमेटिकली हमारी जो कैंडल है वो बुझ जाएगी, अपने आप ही बंद हो जाएगी. क्यों? अब ये कैंडल जो है ये तो कंबस्टिबल सब्सटेंस है और हमने इसे बर्न किया था, तो बर्न करते करते ये बुझ क्यों गई, जबकि जो दूसरी वाली कैंडल है जिसको हमने कवर नहीं किया था वो तो नहीं बुझी, वो तो बंद नहीं हुई. तो क्या रीजन हो सकता है? तो रीजन यही है कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली जा रहा है, बट यहाँ पर क्योंकि हमने कवर कर दिया था तो फ्यू सेकंड्स तक जितनी ग्लास में ऑक्सीजन थी वो तो उसने कंज्यूम कर ली, बट जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई कैंडल जो है वो एक्सटिंग्विश हो गई. दिस प्रूव्स दैट यस, द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग फॉर combustion. Third condition, what I have said, that substance should reach to its ignition temperature. So first we need to understand what is ignition temperature. See students, all the substances burn at a particular temperature. हर जो सब्सटेंस है हमारे अलग अलग, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बर्न होते हैं. लाइक इफ यू आर हैविंग अ पेपर इन योर वन हैंड एंड ऑन अदर हैंड यू आर हैविंग अ स्मॉल वुडन पीस, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है आपके पास, we know both are the combustible substances and where we are trying to burn these both the things, there is adequate amount of oxygen also. but क्या है कि जैसे ही आप पेपर को बर्न करेंगे, पेपर विल स्टार्ट बर्निंग विद इन फ्यू सेकेंड्स, लेकिन जो वुड है उसको अगर आप मैचस्टिक से बर्न करने की कोशिश करो तो वो जल्दी से बर्न नहीं होगी. आपको वुड को बर्न करने के लिए उसके ऊपर या तो केरोसिन ऑयल या बहुत सारे पेपर्स या कोल, कोई ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जो बहुत जल्दी बर्न हो जाती है. और जब वो चीज बर्न होगी तो उसकी एनर्जी से वुड की एनर्जी बढ़ेगी, धीरे धीरे उसको टेम्परेचर मिलेगा और जब उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो पहुंचेगा तो वुड भी जलना शुरू हो जाएगा. तो मतलब क्या है कि हर चीज अलग अलग टेम्परेचर पे जलती है. लाइक केरोसिन बहुत जल्दी जल जाएगा, पेट्रोल को एक स्पार्क की जरूरत होती है, पेपर बहुत जल्दी जल जाता है. उसके अगेंस्ट कोल जो है, कोयला, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है. और उसके अगेंस्ट अगर आप वुड की बात करें तो उसे और भी ज्यादा टाइम लगता है. वुड को तो इतना टाइम लगता है बर्न होने के लिए कि हमें अदर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की हेल्प लेनी पड़ती है उसको बर्न करने के लिए. तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज जलना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस. एंड एवरी सब्सटेंस हैव द different ignition temperatures. The substances, those have very low ignition temperature, those burn even with the help of a spark. They are called as highly inflammable substances. वो बहुत ज्यादा inflammable होते हैं, जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, एलपीजी है, सीएनजी है. they need a spark only to burn, ठीक है. तो इनका जो ignition temperature है वो क्या है, बहुत लो. बट वुड की अगर हम बात करें तो वुड का ignition temperature कैसा है, बहुत हाई. तो किसी भी चीज को बर्न होने के लिए वो कंबस्टिबल होना चाहिए, उसके पास ऑक्सीजन होना चाहिए और साथ ही साथ उसको इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, उतना टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ेगा जब तक कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए. जब सब्सटेंस को अपना इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है तो वो बर्न होना शुरू हो जाता है. सो दीज आर द 3 कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द कंबस्शन, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हमने ये तो देख लिया कि हाउ वी कैन बर्न द थिंग्स, हाउ वी कैन डू द प्रोसेस ऑफ कंबशन. 3 कंडीशन चाहिए हमें, तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. नाउ इफ वी वांट टू एक्सटिंग्विश द फायर, अगर कोई चीज जल रही है बट अब हमें जलाना नहीं है,
नाउ वी वांट टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ कंबशन, अब हमें उसको बंद करना है, बुझाना है, तो क्या करना पड़ेगा? यही तीन कंडीशंस विच वर रिक्वायर्ड, उसमें से किसी भी एक कंडीशन को खत्म कर दो तो ऑब्वियसली फायर ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश हो जाएगी। जैसे नंबर वन, सपोज कहीं पर आग जल रही है, आपको सिर्फ छोटी सी आग जल गई, तो फटाफट क्या करो, उसके आसपास जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस रखे हैं, लाइक इफ यू फील दैट देयर इज वुड अराउंड दैट fire or there is paper or there is gas cylinder or anything else which is combustible, तो उसे फटाफट हटा दो वहां से। छोटी सी फायर है, वो अपना जलेगी, और अगर उसे और कंबस्टिबल सब्सटेंसेस नहीं मिलेंगे तो वो अपने आप बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। उसका मतलब ये नहीं है कि कहीं बहुत बड़ी सी फायर लगी हुई है और उसमें कूद पड़े आप कि मैं यहाँ पे सिलेंडर रखा है, मैम ने कहा था कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हटाने हैं, पहले तो वो हटाएं फटाफट भाग के। नो, इफ यू फील दैट फायर और द प्रोसेस ऑफ कंबशन इज वेरी स्मॉल, छोटी सी आग लगी हुई है और आपको लगता है ये डिजास्टर हो सकता है, ये बड़ी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है आसपास क्योंकि कंबस्टिबल सब्सटेंस रखे हैं तो। but if the fire is already very big and it has already became disastrous for us, already उसने इतना disaster form ले लिया है, तब हम क्या करेंगे? then we will move to the second condition. second condition क्या है हमारी? कि we will decrease the temperature. obviously जो भी आग लगी है उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज ही होगी जो कंबस्टिबल होगी, जो बर्न हो रही है। उस बर्निंग सब्सटेंस का कोई ना कोई इग्निशन टेम्परेचर होगा, वो उसे मिल गया होगा तभी तो वो जल रही है। तो हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं। टेम्परेचर को अगर हम कम कर देंगे तो मे बी वो जो सब्सटेंस विच इज बर्निंग उसे अपना इग्निशन टेम्परेचर ना मिले और वो बुझ जाए। वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर जो होता है वो किसी भी चीज का टेम्परेचर कम कर देता है। सो वी विल स्टार्ट थ्रोइंग वाटर ऑन दैट। पानी डालने से क्या होगा? जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं दोज आर बर्निंग एट दैट टाइम, उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, उनको अपने इग्निशन टेम्परेचर से उनका टेम्परेचर हमने कम कर दिया और फायर अपने आप बुझ जाएगी। but you know what happens, sometimes the fire takes place due to electricity और ड्यू टू ऑयल। जो हमारे ऑयल स्पिल्स वगैरह होते हैं वहां पर कई बार आग लग जाती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कई बार आग लग जाती है। देयर वी कैन नॉट यूज वाटर। क्यों यूज नहीं कर सकते वाटर? बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द पर्सन हु विल ट्राई टू थ्रो वाटर ऑन द फायर कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसलिए पानी नहीं डाला जाता है ऐसी फायर्स के ऊपर। एंड अगर ऑयल वाली जो फायर है, जहाँ पर ऑयल कोई आपकी वो था, बहुत ज्यादा ऑयल रखा हुआ था कहीं पर और वहां फायर हो गया, कंबशन स्टार्ट हो गया, तो वहां पर भी अगर आप वाटर डालेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। बिकॉज जो वाटर है वो ऑयल के ऊपर ही फ्लोट करता रहता है। वाटर की जो डेंसिटी है वो कम होती है, तो वो ऊपर ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। ऑयल नीचे अपना बर्न होता रहेगा, वाटर ऊपर फ्लोट हो रहा है, वाटर का ऑयल के ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, कभी आपने देखा होगा जनरली घरों में सुना होगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर हो गया है, कंबशन स्टार्ट हो गया है, तो वी यूज सैंड एंड ऑल दीज थिंग्स। रेत डाल देते हैं, सैंड डाल देते हैं उसके ऊपर, एंड मिट्टी डाल देते हैं थोड़ी सी, जिससे उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो। बट अगर छोटा मोटा फायर है तब तो दीज थिंग्स कैन वर्क। बट अगर बहुत बड़ा फायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देन वी नीड टू स्टॉप। तब हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देन वी नीड टू स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन का सप्लाई कम करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन का सप्लाई कम करने और बंद करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब फायर एक्सटिंग्विशर से हम स्प्रे करते हैं तो उसमें जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ हेवियर गैस। तो वो क्या करती है, जो आग जहां पर जल रही है उसके चारों तरफ एक सर्कल बना लेती है, और उस सर्कल को क्रॉस करके ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता। तो जितना ऑक्सीजन अंदर है वो तो बर्न हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स, और बाहर का ऑक्सीजन फायर में उस घेरे में अंदर नहीं जा पाएगा, और जो फायर है वो ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश हो जाएगी। मीन्स द प्रोसेस ऑफ कंबशन विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। यही रीजन है कि जब कोई आदमी या किसी कहीं पर आप देखते हैं कि आग लग गई, कोई आदमी जल रहा है, तो हम फटाफट क्या करते हैं, वी रैप अ ब्लैंकेट अराउंड दैट पर्सन। तो ब्लैंकेट से क्या होगा? ब्लैंकेट से ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, जो ब्लैंकेट है वो ऐसे मटेरियल का बना हुआ होता है कि वो ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देता। तो ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली द फायर विल एक्सटिंग्विश, और वो जो पर्सन है उसे हम सेव कर सकते हैं शायद फिर। तो ऑक्सीजन जो ब्लैंकेट्स हैं, ये कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाई वी रैप अ ब्लैंकेट अराउंड द पर्सन हुज क्लोथ्स caught fire. So the answer is to stop the supply of oxygen. So what I was trying to telling you
that there are three conditions which are required for the combustion, that is presence of combustible substance, presence of oxygen, and heat the temperature up to its ignition temperature. And there are three conditions to extinguish a fire. Number one is removal of combustible substance. Number two, decrease the temperature lower than its ignition temperature with the help of either water or sand or anything else. And the third condition is cut off the supply of oxygen either with the help of what that fire extinguishers or with the help of other things like I have told you this blanket. Clear? So इस तरीके से हम ये सब कर सकते हैं और फायर को extinguish कर सकते हैं. Clear, students? Now just a minute. In this class we will study